कोलंबस गया था। कितने लोग मलेरिया की वजह से मर गए थे वहां? हमें पता है ब्रिटिश कोलंबियंस का 1850 में देयर पॉपुलेशन वाज ओवर 10,000 एंड बाय 1880 दैट वाज रिड्यूस्ड टू लेस देन वन फोर्थ। This video addresses the following questions that have been previously asked in Anthropology Paper 2 of UPSC Civil Services Examination. Friends, this was the news yesterday in Hindustan Times. Officials been a fix on how to map uncontacted secluded tribes in Andaman and Nicobar. The recent notification for the national census has left officials in the UT of Andaman and Nicobar seeking answers to three questions. One, how to count the sentinels given the administration's decision to stay at least 5 kilometers away from the North Sentinel Islands, that is their home. Two, how to count Champion's of Great Nicobar who live in the near unreachable corners of the island, and see, does it even make sense to insist on the counting the number of centenarians and the champion? ये तीसरा पॉइंट जो है, ये this is the most crucial and I rather this is anthropological I would say. But this news was in three parts in Hindustan Times. Subsequently, in the afternoon, Professor KCM, he sent this soft copy in the forum group. So I wanted to make it yesterday, but because you had advertisements also, it took time and so I'm doing it right now. News मैंने देखा है वो वही है that 2011-2001 census were based on extrapolated numbers after census officials sailed close to the shores of the island. Extrapolated numbers. Will you rely on the census figures ever? जैसे मैं I was there in Petragarh, Dharchula in 1980-81. Census survey was being conducted. और तहसील हेडक्वार्टर में बैठ करके देवर काउंटिंग द फिगर, कॉलिंग पीपल, अरे तुम किस गांव के हो, इधर आ जाओ, कितने घर हैं, अच्छा नाम बताओ, है ना, वो सबके लिखो। एंड इवन इन द सेंसस आई डोंट नो मस्ट बी ट्रू इवन नाउ, जो नॉर्थ में था फर्दर गांव वो पहले लिखा हुआ था सेंसस के रिकॉर्ड में, और जो साउथ में था मतलब दैट वाज नियरर, इट वाज शोन एट अ डिस्टेंस मोर डिस्टेंट देन द वन इन द नॉर्थ। तो अगर यहाँ हो रहा है, हिमालयस में भी होता है और बहुत सारे गांवों में भी होता होगा, अगर टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है ये, आप उस पर थोप देंगे तो कितने जिम्मेदारी से करेंगे काम, ये अलग बात है। सवाल ये है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस द नंबर 39, 21, 18, ये सारी जो हैं सो हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रोफेसर शशि कुमार ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है that in 1997 the government attempted friendly mission to the island, और ये जो है that we already know, anthropologists from Anthropological Survey of India have been associated with that, और एक सेक्रेटरी हैं मैम, वो भी गई थी और उनकी फोटो बहुत पॉपुलर हुई थी। एक्चुअली these figures which are there, they are extrapolated that everybody knows, but one interesting incident that took place, an American missionary who tried to illegally reach the island and preach Christianity to the indigenous tribe. Actually, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था एंड आई हैव ऑलरेडी सेड इन वन ऑफ द वीडियोस। ये चाऊ भाई जो हैं वो गए, he had a copy of Bible with him. He must have bribed a number of people to go there, and the Sentinelists they finished. मैं मजाक में कहता भी हूँ उसको कि वो जो है जीसस का पाठ पढ़ाने गए थे, जीसस को गुस्सा आ गया कि उधर कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे पास आओ, और जीसस ने अपने पास बुला लिया। एट दैट टाइम विनय भाई वाज द डायरेक्टर एंड पॉलिटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड द गवर्नमेंट दे आस्क्ड हिम to find out what can be done, what has happened, and what is the way out. Same question, yeah, how to bring them to the mainstream, etc., etc. मेरी बात हुई थी उनसे, he was asked to visit, और he didn't have any contacts over there, and again by chance the police commissioner थे दिपिन पाठक, he was my student over there, तो मैंने दोनों का आपस में कांटेक्ट करवाया। बट बिफोर दैट व्हेन टेलीफोन टॉक वाज देयर, हम लोगों ने करीब आधा घंटा बात की,
एंड फाइनली व्हाट वी कंक्लूडेड, व्हाई शुड वी कांटेक्ट देम? जितने भी आउटसाइड कांटेक्ट किया गया है बाय कॉलोनियल पीपल एंड अदर्स, कोलंबस गया था, कितने लोग मलेरिया की वजह से मर गए थे वहां? हमें पता है ब्रिटिश कोलंबियंस का 1850 में देयर पॉपुलेशन वाज ओवर 10,000 एंड बाय 1880 दैट वाज रिड्यूस्ड टू लेस देन वन फोर्थ, बिकॉज the foreign traders, the Russians, the Europeans, the British, they entered the area and they carried the germs of their diseases, respective diseases. हमेशा ही होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो डिजीज के जर्म्स तो आपके बॉडी के साथ जाएंगे ही। फॉर विच दीज पीपल, they neither had resistance in their bodies nor they had any medicine in their medicinal system. And same situation we are going to face there. और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। तो फाइनली वी कंक्लूडेड कि भाई आप कुछ ऐसा एडवाइस करो कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो यार, जिंदा रहने दो उनको भी। आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अ सिंगल पर्सन कैन डिस्ट्रॉय देम, देयर लाइफ, देयर कल्चर। क्या किया है हमने जारवा लोगों के साथ, सबको पता है। ग्रेट अंडमानीज के साथ, निकोबारीज के साथ हमने क्या किया है, आपका प्रोफेसर साहब से पूछ लीजिए, इसी ग्रुप के मेंबर है। वाई वी वांट टू डू इट, इवन दिस क्वेश्चन सरकार को आज तक नहीं समझ आता। इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल क्या है, वाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैनॉट स्पीक अप? देयर आर मेनी 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 अदर आइलैंड्स अनइनहेबिटेड। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, वहां पे रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे। ये जो जीटी रोड बनाई है वहां जारवा, उसमें जारवा की वीडियोस देखी हैं आप लोगों ने? मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए इसके बारे में। ईच एंड एवरी मेंबर जो कभी भी किसी भी पोस्ट पर रहा है सरकारी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, यू मस्ट स्पीक आउट। हर जगह जो है, जो वहां पे अभी हो रहा है, 88,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, कितना नुकसान होगा। डेवलपमेंट की डेफिनेशन तक सरकार के पास क्लियर नहीं है। आई विश द केसीएम सर ने जो भेजी वीडियो, आप सब लोग इसको सीरियसली लें और आप जो है डेवलपमेंट को कम से कम जो है ट्रू पर्सपेक्टिव में सरकार तक पहुंचाएं। कम से कम जिन कम्युनिटीज में हम लोग काम करते हैं, हाँ, जैसे मेरा थोड़ा स्टडी रहा भोटियाज में, थोड़ा राजीव में रहा, फिर झारखंड में और छत्तीसगढ़ में कई सारे ट्राइब्स हुए। हाँ, अभी तक सरकार ने 22-23 में या 23-24 में बजट बनाया था पीवीटीजी के लिए, पहले 15,000 करोड़ का, फिर 22,000 कर दिया फॉर 3 ईयर। सेकेंड ईयर शुरू हो चुका है, थर्ड ईयर जो है वो शुरू हो जाएगा बजट के साथ ही। एंड टिल डेट गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू इवन काउंट द पीवीटीजी। मैं नहीं कहूंगा कि सरकार इनएफिशिएंट है, मैं नहीं कहूंगा सरकार इनकॉम्पिटेंट है, मैं ये कहूंगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सवाल क्यों नहीं उठाया भाई कि 70 लाख लोग आपसे 2 साल में काउंट नहीं हुए, और तीसरे साल में फिर सारे का सारा बजट झोंक दोगे अगर काउंटिंग हो गई तो? आई थिंक समथिंग दैट हैज बीन आवर ब्रेड एंड बटर, उनकी सर्वाइवल के लिए तो हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। आई एम प्लेइंग माई रोल वेयर एवर आई कैन। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू, प्लीज। एंथ्रोपोलॉजी सर्वाइव करेगी अगर आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। सोचिएगा। थैंक यू।